गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के साथ मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता आज डिस्कस करेंगे कि श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन की टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म क्या होती है। पिछली क्लास में हमने श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को डिस्कस किया था। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को निकालने के लिए या टाइम इंडिपेंडेंट और स्टेशनरी स्टेट फॉर्म को समझने के लिए हमने कंसीडर किया था कि यदि मान लो कोई भी पार्टिकल, कोई भी सिस्टम, जब पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन होती है और उस निकाय की, उस कण की कुल ऊर्जा नियत रहती है, तो उस कण के वेव फंक्शन को साई एक्स टी से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम दो अलग अलग वेव फंक्शंस के प्रोडक्ट के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि ऐसा निकाय जिसकी पोटेंशियल एनर्जी या ऐसा कण जिसकी पोटेंशियल एनर्जी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, समय पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करती है, एंड द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, देन द वेव फंक्शन साई एक्स टी कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेपरेट वेव फंक्शंस, one is ux and another is ft, in which ux function is depend only upon position and ft function is depend upon the time coordinate. So the psi xt is equal to uxt dot ft, और briefly अगर हम चाहें तो इसको psi is equal to uf भी लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा डेल psi over डेल x is equal to, हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया with respect to position. As ft is a function of only t, so it remains constant after differentiation. So del u over del x, del psi over del x is equal to f del u over del x. And further differentiating this equation again with respect to x, so left hand side is equal to del 2 psi over del x square is equal to f into del 2 u over del x square. Similarly, again the psi is equal to uf is differentiating with respect to time, so del psi over del t is equal to, now this u remains constant, so u del f over del t. As we know, energy operator E can, or energy can be written in the form of operator as E is equal to iota h cross del over del t. So we can write down E psi is equal to iota h cross del psi over del t. So del psi over del t is equal to E upon iota h cross, इधर लेके आए हम राइट हैंड साइड में और आयोटा से डिवाइड किया, आयोटा से मल्टीप्लाई किया, नीचे हमारे पास आयोटा स्क्वायर हुआ, being iota square this negative sign comes over here, so iota over h cross E psi, del psi over del t is equal to, now we have the value of del 2 psi over del x square, we have the value of psi, we have the value of del psi over del t, and we will consider this as iota h cross del psi over del t is equal to minus of h cross square upon 2m del 2 psi del 2 over del x square plus v psi, और हमने इसको लिखा iota h cross डेल साई ओवर डेल टी की हमने वैल्यू रखी यहाँ से, माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई साई इज इक्वल टू यू एफ, सो आयोटा एच क्रॉस विद इन द ब्रैकेट माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई यू एफ इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एफ डेल 2 यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी यू एफ। हम देखें तीनों तरफ से हमारे पास एफ कॉमन आ रहा है, हमने इसको डिवाइड कर दिया और आयोटा स्क्वायर इज माइनस, तो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस टर्म ही रहेगी, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी यू इज इक्वल टू ई यू, और एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई को हम इधर लेके आ गए, सो ई माइनस वी इंटू यू इज इक्वल टू 0, as we have already considered that u is a function of x only, so u is equal to ux. So this equation can be rewritten as del 2 ux over del x square plus 2m over h cross square e minus v ux is equal to 0. Now we can observe that equation number 4 is totally time independent term.
So we can say that this is the one-dimensional time independent Schrodinger's wave equation. As the particle can move in all three dimensions along the x-axis, y-axis or z-axis. So when we consider the motion of a particle, in such a case the time independent or stationary state form of Schrodinger's quantum mechanical wave equation is written as del 2u over del x square plus del 2u over del y square plus del 2u over del z square plus 2m over h cross square e minus v u is equal to 0. Here this u is not only a function of x coordinate, now it is a function of x, y and z coordinate. Or we can write del 2u, because this bracket term is del 2 operator. So del 2u plus 2m over h cross square e minus vu is equal to 0. If we are interested to write in the more explicitly form, then we can say del 2u r plus 2m over h cross square e minus v u r is equal to 0. Here we can say this u is a function of position vector r, which is again function of x coordinate, y coordinate or z coordinate. So this equation 5 gives the Schrodinger's time independent wave equation. Now we consider the phase of the time dependent part of the wave function. चूंकि हमने wave function को कैसे represent किया था, it is a product of two functions in which the one function is depend only upon the position and another function depends only upon the time. So this ux wave function is time independent part and ft wave function is time dependent part. So we can write down del psi over del t is equal to ux del ft over del t, और del psi over del t is equal to हमने निकाला था previous equations में. You can observe this from equation number 2 that del psi over del t is equal to minus of iota upon h cross e psi. So here again we consider this term del psi over del t is equal to minus of iota h cross e psi, और del over del t substitute किया हमने psi की value in the form of ux into ft. So del over del t uf is equal to u del f over del t. This is equal to minus iota upon h cross e psi का हमने फिर से वैल्यू रखा ux into ft, और del f over del t, यहाँ से u कैंसिल आउट हो गया. So del f over del t is equal to minus of iota upon h cross e ft. सेपरेट किया हमने f और t को, f को एक साइड ले लिया. So del ft upon ft is equal to minus of iota upon h cross e delta t. दोनों साइड से इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट कर दिया. So log of ft is equal to minus of iota upon h cross et plus some constant of integration c. Constant of integration का हमने निकाला वैल्यू at time t is equal to 0. Suppose the function ft is equal to f of t. So c will comes out to be log of f naught, where f naught is a constant of integration. So log ft minus log f naught is equal to minus of iota upon h cross et, or log of ft upon f naught is equal to minus of iota h cross et. ft is equal to f naught e raised to the power minus of iota upon h cross et. Therefore psi xt is equal to ux into ft. Now we have both the part. So psi xt is equal to ux f naught e raised to the power minus iota upon h cross et. This equation in three-dimensional space can be written as psi rt is equal to ur f naught e raised to the power minus iota upon h cross et, where ur gives the amplitude of the wave function psi rt and the phase is given by the part e raised to the power minus of iota upon h cross et. So the equation 5, which was given as a time independent form of the wave equation, in terms of ur is written as del 2 ur plus 2m over h cross square e minus v ur is equal to 0. This equation is also known as the amplitude
equation. Now we consider what are eigenfunctions and eigenvalues. आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है, एक बार फिर से यू जस्ट रीलुक दिस इक्वेशन नंबर 4. दिस del 2 psi over del x square plus 2m over h cross square e minus v ux is equal to 0, which is considered as one-dimensional time independent Schrodinger's wave equation. So now we consider to understand this eigenfunctions and eigenvalues. Suppose we consider that the wave function ux, which satisfied the equation number 4, we can consider is also a certain auxiliary conditions. उनको हम कहते हैं कि ये हमारा आइगन फंक्शन है और हम कुछ समय कभी कभी हम उसे एम्पलीट्यूड फंक्शन भी कह देते हैं. ऐसा पाया गया है कि un जो है वो हमारे वेव इक्वेशन का संतोषप्रद सॉल्यूशन तो है ही, बट उसकी करस्पॉन्डिंग कुछ सर्टेन वैल्यूज ही होती हैं जिनको हम En से रिप्रेजेंट करते हैं. उन सर्टेन वैल्यूज ऑफ एनर्जीज को हम कहते हैं कि वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एनर्जी वैल्यूज है और उस वेव इक्वेशन की इन ई वैल्यूज को हम आइगन वैल्यूज कहते हैं. और एक वेव इक्वेशन जो इस तरह की होती है जिसका सॉल्यूशन जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन आता है, जिसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक वेव इक्वेशन भी कहते हैं. इसका मतलब जो बोर्स का जो पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम में जो कई सारे ऊर्जा के स्तर होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो हमारा वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट का ही कॉन्सिक्वेंस है कि हमारे पास एटम्स में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हमारे वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज का मतलब हमें समझ में आया कि जो टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस हैं, यदि हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला है, दैट सॉल्यूशन विल बी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ux. सो ux जो है उसकी हमारे पास सर्टेन वैल्यूज होंगी एंड फर्स्ट करस्पॉन्डिंग u1x, दूसरा स्टेज कंसीडर करेंगे तो u2x, u3x, एज सच हमारे पास unx तक आएंगी वैल्यूज. तो ux is considered as the आइगन फंक्शन. इन आइगन फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की वैल्यूज होंगी, उन एनर्जी वैल्यूज को हम आइगन वैल्यूज कहते हैं. नाउ वी कंसीडर व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन साई. चूंकि हमने ये कंसीडर किया कि क्वांटम मैकेनिकल में जब हम किसी भी पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, जिसका कोई भी ऐसा पार्टिकल लिया जिसका द्रव्यमान m है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी v है, अगर मान लो ऐसे पार्टिकल की अगर हम क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करें तो हम कहते हैं कि उसका जो वेव फंक्शन है, जिसको हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कहते हैं, हम कहते हैं उससे उस पार्टिकल की सारी डिस्क्रिप्शन को हम दे सकते हैं. इसका मतलब कि यदि हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली किसी भी पार्टिकल की हिस्ट्री चाहिए, किसी भी पार्टिकल का बिहेवियर चाहिए, तो हम कहते हैं कि हमें उस पार्टिकल का वेव फंक्शन पता होना चाहिए. इसका मतलब हमारे पास किसी भी कण की जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन यदि हमारे पास वेव फंक्शन के रूप में प्रेजेंट है तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. चूंकि हम जानते हैं कि जब कण हमारा गतिशील अवस्था में होता है तो वो वेव पैकेट की तरह बिहेव कर सकता है. हमारे पास उस कण का वेव फंक्शन पता है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जो वेव फंक्शन जिसको हमने साई से रिप्रेजेंट किया है, उसका मैग्नीट्यूड जिन भी रीजन में सबसे ज्यादा होगा वहां पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. जिस रीजन में वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा, उस रीजन में पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूनतम होगी. इस बेसिस पर हमने कंसीडर किया कि जो किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन है वो मेजर करता है पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी को एक सर्टेन पोजीशन के सराउंडिंग्स में. इस चीज को हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन किसी भी पार्टिकल को ढूंढने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है.
इसका जो फंडामेंटल पोस्टुलेट था वो सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न ने, और उन्होंने कंसीडर किया कि इस प्रोबेबिलिटी को यदि हम गणितीय रूप में व्यक्त करना चाहें तो इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि साई जो है हमने उसको लिखा इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी साई स्टार साई विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर, एंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर विल गिव यू द probability of finding a particle in a particular region. Where the probability of finding the particle in a particular region is maximum, then the possibility to finding the particle is maximum. So this psi square is interpreted as the probability density to finding a particle in the state of psi RT. तो अगर मान लो हम ये कंसीडर करें कि कोई भी एक छोटा सा हमें वॉल्यूम एलिमेंट दिया गया है dv, उसमें जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम r और r से r प्लस डी आर तक रिप्रेजेंट करते हैं, उस छोटे से आयतन में यदि हम उस कण को ढूंढने की प्रायिकता निकालें तो वो प्रायिकता हमारे पास कितनी होगी? गणितीय रूप से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं p dv, और इट इज इक्वल टू साई साई स्टार dv, और इट कैन बी रिप्रेजेंट एज मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर dv। यदि हमारे पास कोई भी कण एक दिशा में गतिशील है तो इसकी प्रायिकता को हम लिख सकते हैं p इंटू डी एक्स साई एक्स टी साई स्टार एक्स टी डी एक्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ साई एक्स टी स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल will be found over a small distance dx at a position x at time t. In this case, the psi xt square is called the probability per unit distance. चूंकि हम जानते हैं कि psi xt जो है या psi rt जो है उसको हमने दो वेव फंक्शंस के प्रोडक्ट के रूप में लिखा था, ur और ft की वैल्यू थी हमारे पास e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा टी। उसी तरह से psi स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, u स्टार e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। सो p dv इज इक्वल टू u xyz, u स्टार xyz, e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा टी ओमेगा टी, और e रेज़ टू द पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी विल बी u1, so this is equal to 1 and this is dv. So p dv is equal to magnitude of u xyz square dv. Thus for the wave function satisfying the time dependent Schrodinger's equation is the probability is always independent of time. So this is all for today. Thank you.